You need to understand what is an electron spin is. Now, what is spintronics? How is it different from electronics? Because in electronics, we are mainly concerned about the motion of electron. Whereas in spintronics, we are concerned about the alignment and precision of the electron. ये दोनों properties के ऊपर बेस करके there is a new field called spintronics. So there are some devices, there are some devices which are made out of spintronics, and there are some advantages of the upgraded devices. The advantages are NVM. NVM stands for non-volatile memory. Non-volatile memory. MRAM, magnetic random access memory, quantum computation, low power consumption, and magnetic sensing. So these are the advantages of having spintronic device. हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. So first, as I said you need to understand what is actually an electron spin is from quantum mechanical point of view. Okay. This is today's focus mainly on that. Now, what do you think is electron is? Is a spin is. So you have a nucleus, and there is an electron revolving around this nucleus, and also this electron is revolving around its own axis. So due to the revolution of the electron, the rotation of the electron around its nucleus, you get something called an orbital angular momentum S. इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नहीं अच्छा तो फिर वो अपना मैं उसका दिस इज द क्लासिकल वे. जो आ रहा क्वांटम मैकेनिकल वे नहीं आएगा. दिस इज द क्लासिकल वे. क्वांटम मैकेनिक्स पे हम लोग घुसे नहीं. नाउ इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन मोशन, जैसे कि एस में. दिस इज व्हाट वी नो. So, is it electron spin की हम जब बात करते हैं, is it like spinning of a ball? The answer is no. Electron spin और spinning of a ball में फर्क है. क्या फर्क है? First of all, electron spin जो है, it is considered to be an intrinsic angular
इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। तो इंट्रिंसिक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दो तरह का एंगुलर मोमेंटम होता है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल इज बेसिकली सपोज आर क्रॉस पी vertically tied to a central string and it is rotating. This gives you R cross P. And if an object is rotating about its own axis, precision, then L is equal to I into omega. ठीक है, इलेक्ट्रॉन केस में this electron spin case में this revolving around its own axis, ये यहाँ this revolving around its own axis. So that is why the word intrinsic angular momentum. Now ये जो classical view है, we are representing it in terms of vectors. ये classical view change हो जाता है when we say that is being represented in terms of angular momentum. और angular momentum की जब हम बात करते हैं then हम लोग को represent करना पड़ेगा something called operators. Quantum mechanics से classical mechanics में जो shift होता है, every physical quantity changes into an operator. Like distance, position, momentum, energy, time, angular momentum, spin angular momentum, everything. These are all physical quantities in the real space. All of them, when we are going into the quantum regime, all of them are being converted into operators. Operator का सिंबल ऊपर एक छोटा सा कैप, ठीक है। ये वाला पार्ट है, सारे पैरामीटर्स they get converted into operator. The spin is also an operator. Okay. Clear है यहाँ तक? इसके up to this point, spin is an operator. तुम लोग इस इक्वेशन को तो जानते हो, है ना? दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन। यहाँ पे H इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो बेसिकली हैमिल्टोनियन है, ये भी क्वांटम रेजिम में जाके इट्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑपरेटर। दिस इज हैमिल्टोनियन। तो स्पिन एज has been found is also an operator. ये वाला spin operator, okay? S. S is a combination of x in 3 different axes, Sx, Sy, and Sz.
whenever there is an electron rotating और उसके साथ इलेक्ट्रॉन अंदर प्रिसीशन, इसके साथ हम लोग एक एंगुलर मोमेंट एसोसिएट कर रहे हैं, एस में वेक्टोरियल बोल रहा हूँ. दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एच क्रॉस 2, है ना, इज इक्वल टू स्मॉल एस H cross, and S is the spin quantum number, small s, and it is equal to half. तो लोग जानते हो उसको यहाँ तक. Whenever there is a rotating charge, को भी अगर charge rotate करता है, maybe electron, maybe anything else, तो it gives a current I, current anything which is rotating or precision, it is current. So if you take the area of this region and if you multiply it with the current, you get the moment. Right. तो इलेक्ट्रॉन जैसे स्पिन के साथ भी there is a moment associated with it. और वो मोमेंट कहाँ पे होगा? इट विल बी ऑपोजिट टू द स्पिन एंगुलर मोमेंट. सो इफ इट इज एस इज इन दिस डायरेक्शन, देयर विल बी अ मोमेंट, देयर विल बी अ मोमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे, एंड इट विल बी गिवन बाय एस मोमेंट. Moment due to the spin. And what is the relationship between S and S? Mu S is equal to minus G mu B S by H minus G mu B H by cross. तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स के मीनिंग है. दिस G is called this G का वैल्यू है 2, और इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग फैक्टर. इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग फैक्टर. दिस mu b, this is called Bohr magnetron. इसका जो यूनिट है दैट इज H क्रॉस I to M. Why is it important? Because it is the unit of magnetic moment. Consider it to be the unit of magnetic moment का unit है. तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग फैक्टर ये कहाँ से आता है? क्या स्प्लिट हो रहा है? What is getting splitted? That we need to understand. तो what we will do, इसको हम लोग थोड़ा सा suppose a magnetic field has been applied. In this system. So due to the application of the magnetic field, there will be
some sort of Hamiltonian generated H, which will be equal to minus mu s dot b. Interaction होगा with the system, and this Hamiltonian, that is interaction, will create an energy gap. Then that means कैसे energy gap create करेगा, उसको derive करेगा, we derive it, then we will able to understand. So this is equal to minus mu s की जगह पे put the values of this mu s, then it will be G UV S by H cross. ठीक है, ठीक है. तो what is the value of G? G is equal to 2. What is S? S cross, that is S cross by 2. Capital S. S dot mu. So we will get 2 mu b 2 cross b. So everything will cancel out. Only thing that will remain is mu b. Okay. That means there will be an energy gap due to the application of magnetic field, जिसका पैरामीटर है UV into B. एनर्जी गैप कहाँ से आया? एनर्जी गैप आया ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेस्ड अपॉन इट्स स्पिन. हाँ नहीं, माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ पे था, तो 2 माइनस इसलिए एनर्जी गैप. So that means your S state actually got split into 2 different states. स्पिन स्टेट था वो 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया. किस लिए? बिकॉज इट हैज गॉट 2 स्पिन्स, वन इज अप स्पिन एंड वन इज डाउन स्पिन. प्रेसेस जब हो रहा है, जो प्रेसेस हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूम सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है. तो क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अप स्पिन डायरेक्ट होम. अगर करस्पॉन्डिंगली उल्टा घूमेगा तो करस्पॉन्डिंगली इसका जो व्यू होगा वो अगर यहाँ पे हो रहा है, इसका व्यू कहाँ पे होगा? ऊपर. तो ड्यू टू दिस 2 different spin states there is a energy gap. So the first one will be half UVB and the second one will be also half UVB plus half and minus half. इन दोनों में जो डिफरेंस है डेल्टा E, that will be UV. The application of magnetic field. Okay. तो यही जो प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि द मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में यूज हुआ है उसी डायरेक्शन में स्प्लिट होगा.
नॉट दैट कि द एक्स एंड द वाई डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है. So the magnetic field is presumably in the z direction, though the splitting has also taken place in the z direction, as x and y directions are intact. ठीक है. Now हम लोग थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. यहाँ तक इट्स स्लाइटली क्लियर, नॉट एग्जैक्टली, मतलब ठीक ठाक है, इट्स मॉडरेटली क्लियर. अभी हम लोग आ रहे हैं प्योर क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में बात करें. In terms of operators. So we know that there is a spin operator. इसकी तीन कंपोनेंट है, एस एक्स, एस वाई और एस जेड. ये जो इक्वेशन है H psi is equal to P psi, मैं इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट इन अनदर फॉर्म. Are you aware with this sort of notation? क्वांटम मैकेनिक्स में हुआ ये वाला ऐसा वाला नोटेशन, क्या बोलते हैं उसको? It is basically Dirac's notation. बोलते हैं केट, आइगन केट. वर्ड ब्रैकेट BRACKT, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन टू टर्म्स. एक ये वाला और BRA and KET. So this means this sort of notation, which is actually a row vector and kit मतलब a column vector, a bra vector or kit vector. So this represents a kit vector. ये बेसिकली एक कलम मैट्रिक्स को दिया है. तो लोगों ने आयन वैल्यू मैट्रिक्स आइडेंटिकल इक्वेशन तो पढ़ा हुआ, मैट्रिक्स है ना, ये एक 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, then you associate a column vector with it. I can state you get a value and then value and you get back the column matrix. The same thing is being applied. So this is a kit vector, column vector. Right. तो इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड टू स्पिन हम लोग भी एक केट वेक्टर यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ केट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू एन अप स्पिन एंड देयर विल बी अ केट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू अ डाउन स्पिन. द अप स्पिन विल बी 1 0 and there will be a downstream 0 1, right, and there will be a superposition of upspin and downspin. इसके लिए भी एक केट वेक्टर होगा. That will be equal to 1 by 2
इसका corresponding to spin, there will be also an operator eigenvalue equation. What will be that? उसको लिखते हैं S MS S. This is the simultaneous eigenvalue. कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो रहा है क्या? इट्स गेटिंग टू मच कंफ्यूजिंग। ठीक है, हो जाएगा तो बहुत आसान है। तो साइमल्टेनियस आइगन मतलब दो ऑपरेटर्स का एक साथ हम लोग जब आइगन के बोलते हैं तो दिस एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ एस स्क्वायर एक्टिंग ऑन एस एंड एस, giving the value which is square operator, because it's giving the value s into s plus 1 h cross square s and s. ठीक है, दूसरा है s z s and s. What is S? S is the small s is the total spin quantum number, and ms is the magnetic spin ms का एग्जिस्टेंस तब आता है जब देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, जो लास्ट स्लाइड में जो मैंने दिखाया था ना कि डिवाइड हो जाता है, एस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट स्टेट्स. वन इज corresponding to the ms plus state, another one corresponding to the ms is equal to minus half state. तो दोनों के केस में आइगन वैल्यूज क्या होगा? इट विल बी हाफ UVB minus half plus half. Already we have done it, so there is no need to repeat. So the state is getting divided into two parallel. The first one is corresponding to up spin, and the second one is corresponding to down spin. ये इसको हम बिकॉज हम लोग यहाँ पे एस जेड यूज कर रहे हैं. ऐसे मतलब द मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड इन द जेड डायरेक्शन. Field applied in the z direction, then this magnetic spin quantum number becomes active. This is the total spin quantum number. Okay. So now the question is, in quantum mechanics also, the spin, as I said, is being represented in terms of operators. You will be representing it as equal to
sigma I H cross. Spin is also an operator. तो corresponding उसका matrix क्या होगा? That will be denoted by this quantity. तो 2 हो गया। मतलब क्लासिकली हम लोग क्या लिख रहे थे? क्लासिकली हम लोग लिख रहे थे S as equal to S H cross by 2. This is what we are writing classically in terms of vector. ठीक है? Quantum mechanics में जब चले गए तब ये S is getting replaced by ये वाला S है, the spin quantum number. It is getting replaced by something called sigma I. What is the sigma I? Sigma I is nothing but this called Pauli spin matrices. Pauli spin matrix. And I मैंने इसलिए लिखा because X, Y and Z तीन कंडीशंस में। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है? From starting, so that it gets clear from this point. So there is a classical view. And there is a quantum. What is the basic difference? With quantum, everything becomes an operator. Okay. Spin is considered to be an angular momentum, and it is represented in terms of S H cross by SH cross. Where S is equal to 1 by 2. इसके दो स्टेट्स हैं, एक प्लस स्टेट और माइनस स्टेट। देयर इज एन अप स्पिन एंड देयर इज अ डाउन स्पिन। So corresponding to S, there is a magnetic moment for the upspin and downspin, which is equal to minus G mu B S by H cross. ठीक है? अभी हम लोग आ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो द स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस। ये जो डेल्टा S है, डेल्टा E है, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द Z एक्सिस, ये हो रहा है। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं? सो MS was there previously, also S was there, लेकिन अभी जो होल कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। एवरीथिंग इज बिकमिंग एन ऑपरेटर, एवरीथिंग इज बिकमिंग एन ऑपरेटर eigenstate eigenvalue and eigenstate। इस फॉर्म में सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे को दो आइगन वैल्यूज मिले थे, सॉरी दो क्वांटम नंबर्स मिले थे क्वांटम मैकेनिक्स में, बेस्ड अपॉन दैट वी आर क्रिएटिंग द आइगनस्टेट एस, जॉइंट आइगनस्टेट, जो कि दो ऑपरेटर्स को डिनोट करता है।
एक है एस स्क्वायर ऑपरेटर, acting on ms, giving you the value s into s plus 1 each cross square s ms or s z s ms ms each cross s। यहाँ पे कुछ प्रिसीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जस्ट स्टॉप इट। ऑल्सो वी हैव अप स्टेट, ये वाला स्टेट इसको हम बोल रहे हैं 0 डाउन स्टेट 0 1 and a superimposed state ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स कैसे चेंज हो, तो वहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाउली स्पिन मैट्रिक्स को। So S is having three different states, S6, S5 and SZ, and S is being represented in terms of a matrix which is called poly spin corresponding to x, y and z, sigma, there will be sigma x, sigma y and sigma. Clear it? Yes, clear it. Yeah, got it. So it's a different form, just sigma x is represented as 0, 1, 1, 0. Sigma y is represented as 0, I minus I, 0. Sigma z is 1, 0, 0 minus okay. मैं अभी कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ कम्यूटेटर्स के बारे में बोलूँगा। हम लोग इस का मतलब जानते हो? जानते हो क्या क्या लिखा है? वेरी फेमस लॉ इसके बारे में। दिस इज हाइजेनबर्ग्स आइडेंटिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle. And the bracket is called Gauss's bracket. Okay. So the next section is commutation.
ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, इसका मतलब है ए बी माइनस ए। ओके, ए बी माइनस बी का मतलब क्या हुआ फिजिकली कि किसी भी स्टेट में पहले हम लोग ए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इन द फर्स्ट केस वी आर ट्राइंग ए ऑपरेटर, then we are considering the B operator, and in the second case we are finding out the value corresponding to the B operator, then we are going for the B operator. So if A comma B is equal to 0, इसका मतलब है कोई भी ऑपरेटर का ऑर्डर हम लोग अगर चेंज करते हैं वी आर गेटिंग इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो मुझको अगर मोमेंटम पहले फाइंड आउट करना है फिर पोजीशन बाद में जानना है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग आउट द कहाँ पे यहाँ पे ये ब्रैकेट में कॉमा होता है। हाँ कॉमा। तो मुझे अगर पोजीशन पहले जानना है फिर मोमेंटम जानना है, या फिर मोमेंटम पहले जानना है फिर पोजीशन जानना है, तो दोनों में आई विल गेट द सेम रिजल्ट। सो इफ एरर बी एक्स ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर इज इक्वल टू 0, देन हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? We cannot determine the position and momentum exactly at the same. Position ढूंढने जाओ तो momentum चला जाएगा, तो इसीलिए this is not equal to 0. So if it is not equal, so if it is equal to 0 in any Poisson's bracket में, we say that the operators commute. Right? The operators not जैसे एक जस्ट टू रिमेंबर, ये तो सिंगल पेन दरवाज़ा है, दो दरवाजे का जो डोर होता है, इफ यू कुड ओपन इट इन 2 ways, ऐसे भी ओपन कर सकते हो, स्लाइडिंग डोर जो होता है ना, यू कैन ओपन इट इन दिस वे और इन दिस वे, दैट मीन्स दे आर कम्यूटिंग, दोनों के केस में खुल रहा है। ये मान लो एक खुलता है एक नहीं खुलता है, सो एक किस्सा याद आ गया। इस नॉट कम्यूट का एक बहुत फनी, मतलब तुम लोग इसका बहुत अच्छा, तुम लोग मिसिंग द टारगेट का बेस्ट जानते हो? बेस्ट एग्जांपल क्या है? तुम लोग लगता है क्या हो सकता है? मतलब समथिंग विच इज श्योर शॉट बट नहीं, ऐसा कुछ एग्जांपल तुम लोग की लाइफ में कुछ हुआ हो तो, मतलब कुछ होना ही है, मतलब ऊपर से मैंने बॉल फेंक दिया, उसके नीचे जाके गिरना ही है, राइट? तो सॉर्ट ऑफ इट्स ए कम्यूटिंग, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एनालॉजी हम लोग डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ कम्यूट करना चाहिए लेकिन कम्यूट नहीं किया है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे लाइफ में मोस्ट मतलब इंटेंस एग्जाम्पल कुछ है? नहीं, वो तो हाँ क्लास होना चाहिए, नहीं होना। मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है ना, तो दैट इज अल्टीमेट। मेरा एक दोस्त था, वो ताली मिस किया, ही मिस्ड द क्लैप, ठीक है? तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज सपोज टू बी कम्यूटिंग बट इट हैज नॉट कम्यूटेड, सॉरी सपोज टू बी नॉट कम्यूटिंग बट इट हैज कम्यूटेड। इसका और एक फॉर्म है, सो इट इज इक्वल टू H क्रॉस।
ई कहाँ से आया आइज क्रॉस, फ्रॉम वेयर हैव यू ऑब्टेन दिस आइज क्रॉस, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स. Field wave equation, ठीक है, you know this equation. You know this? क्या होगा? ठीक है, only the IQ will come out. Right? So देखो यहाँ तक ठीक है कि नहीं, you are getting this on that. ठीक है ना? Can I write this? कुछ याद आ रहा है? So the P operator, इसका जो expression है, is actually not equal to what's it equal to? It is I cross del x del y del x. तो मान लो x p और यहाँ पे it is a psi active. So it is equal to, you know that it is equal to x acting first, then p acting minus p acting first, then x acting. क्या होगा? फर्स्ट केस में it will be x p psi minus p x psi इसको तुम just do the ठीक है. So this is actually the Heisenberg's. इसका और एक फॉर्म है, Heisenberg's प्रिंसिपल का और एक फॉर्म है एनर्जी एंड टाइम के साथ. E and T, it is also I square I squares. How will you obtain the energy eigenvalue here if you differentiate it with respect to T? So T से क्या आएगा? माइनस ठीक है. E is equal to h cross omega, you know that.
तो मैं अगर ऊपर H क्रॉस और नीचे H क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ H क्रॉस इसको फिर से टाइम से यहाँ पर जोड़े तो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग इक्वेशन, वन इज दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। इसको उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा, जस्ट पुट बी ए पी एक्स यू विल गेट माइनस एक्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेशन। पॉइजन्स मैट्रिक्स का भी एक कम्यूटेशन रिलेशन होता है। इट सेज दैट सिग्मा आई सिग्मा जे इक्वल टू Do you know what this symbol is called? इसको बोलते हैं देवी सिविटा सिंबल, लेवी सिविटा सिंबल। इसका सिंपल मतलब है इट शुड बी साइक्लिक इन नेचर। इट मीन्स आई जे एंड के, ये जो सर्कल है आई J, K, it should be like this. तो सिग्मा I and सिग्मा J is giving you the value सिग्मा K, लेकिन अगर हम उल्टा लेते तो हम लोगों को वैल्यू नेगेटिव मिलता है, लेवी सिविटा सिंबल। तो इसका मतलब है सिग्मा X, सिग्मा Y, इसका परसेंट ब्रैकेट तुम्हारा लो, तो you will get 2I sigma z. Excellent. Two I sigma z. Okay. So जैसे एक कम्यूटेशन रिलेशन है, दिस इज अ कम्यूटेशन ऑपरेटर, वैसे something is called anti-commutation. Anti-commutation का symbol है curly brackets. Anti-commutation का symbol है curly brackets. So it says that if it is a sigma I, comma sigma j, you get 2 delta I j I, where delta I j का मतलब है which is called Kronecker delta. It means that delta I j is equal to 1 when I is equal to j and is equal to 0 तो ये जो दो रिलेशन है, एक कम्यूटेशन रिलेशन, एक एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, इससे फिजिकल इसका मतलब क्या है? फिजिकल मतलब है कि हम लोग वी कैन नॉट मेजर ऑल द थ्री क्वांटिटीज एट द सेम टाइम एंड द मेजरमेंट शुड बी इन अ साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स।
थोड़ा सा हम लोग जस्ट टू मेक द एनवायरमेंटल डिफरेंट, हम लोग थोड़ा सा स्पिंट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि स्टार्टेड दीज आर ऑल रिक्वायर्ड इन स्पिंट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे नॉर्मल करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन द स्पिंट्रॉनिक डिवाइसेस वी आर कंसिडरिंग फ्लो, तो वहाँ पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर आर सम there is a current which is based upon the spins which are upspin, and there are currents which are downspin. नॉर्मली करंट इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है 50%। Probability of upspin and downspin is same. Somehow, if I could make the upspin's probability more compared to downspin, then that becomes a spin polarized current. ठीक है, मान लो दिस इज नॉर्मली हाउ द करंट लुक्स। एक अपस्पिन है, दूसरा डाउनस्पिन है, एक अपस्पिन है। ठीक है, मैं अगर इसको किसी भी तरह से आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आई कैन मेक देयर इज अ बायसनेस टुवर्ड्स अ सर्टेन स्पिन डायरेक्शन, then this is called a spin polarized current. मैं कैसे करूँगा स्पिन पोलराइज्ड करंट? मैं अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू इसको पास करूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में लोग जानते हो कि दिस हैज गॉट अ सर्टेन डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। तो जब लोग ग्रेन्स लिखते हैं ना, आई मीन डोमेन्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हाउ डू वी मेंशन द डोमेन्स? हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, स्पिन डायरेक्शन के बारे में कहा, स्पिन डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन जो कि ऑपोजिट रहता है इसके। सो इसके थ्रू अगर मैं एक नॉर्मल करंट पास करता हूँ तो इट विल बी स्पिन पोलराइज्ड विद द इफेक्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स। तो उसके बाद जो मुझे करंट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एसपीसी। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसपीसी? Application of SPC, there are two major applications, magnetic random access memory (MRAM). Two main applications, और एक है NVM. NVM, non-volatile memory. मतलब any memory which works without any power supply. हमने क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पावर सप्लाई खत्म कर दिया, मेमोरी लॉस्ट, लेकिन if you want to keep the memory intact without any power supply, then we use an NVM. ठीक है, और magnetic random access memory, it makes the device much more faster. तो ये कैसे होता है? It occurs by a process called STT. Spin transfer torque. Torque समझ जानते क्या है? Rotation of force, momentum into force. So how this spin transfer torque is generated? ये जो SPC जनरेट हुआ है, when we have generated a spin polarized current,
इसको मैं दोबारा किसी मैग्नेटिक मटेरियल में अगर इंसिडेंट करता हूँ, राइट, मैग्नेटिक मटेरियल में वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक डोमेन्स, इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा इसके डायरेक्शन में रोटेट हो जाने के लिए, राइट, है ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सो देयर विल बी अ बैकलैश, तो ये जो ऐसा था और ये फिर ऐसे हो गया, समझ रहे हो? Your better picture. ये डिफरेंट स्पिन्स है, तो दिस आर ऑल डायरेक्शन। तो ये स्पिन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इट ऐसे, there will be some force applied to this one to align it in this direction, ये वाला सही रहेगा, मतलब कोई अगर इस तरह से कोई अगर ऐसे रहे तो उसको फिर अलाइन करना चाहेगा इस डायरेक्शन पे, है ना। सो दिस इज द स्पिन ट्रांसफर टॉर्क, मतलब इट इज ट्राइज टू अलाइन द magnetic moments along the direction of this. So there will be opposite force acting also. So this is actually the spin transfer torque. यही जो memory devices है, it is basically the alignment of the spins, the magnetic material. So you see, this is called the spin transfer torque, STT. Spin which is getting transferred, and there is a torque which is being generated. Right. So this is the basis of magnetic random access memory, and non-volatile, and it is also taking low power. Power का use कम होता है, and it is also used in magnetic sensing. ठीक है, जो हम लोगों ने शुरू में जो डिस्कस किए थे, द एडवांटेजेस ऑफ दिस।